Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video lecture for those students who are having the little knowledge of genetics and who are having the alphabet of genetics, who try to know what about the key concepts and their deep knowledge about the genetics, who try to practice themselves for the genetics. Actually, in case of genetics, the cross is important. The cross means the interaction between male and female, that is known as cross. Interaction, the result of interaction is the living organism in next generation, but the interaction between male and female in order to give rise to the next offspring or the new generation is known as cross. So, cross may be different kinds. In genetics, the cross are basically three types. Later in this video lecture, I will describe that kinds of three types of cross. That is very important for learners of genetics. So be careful regarding the video lectures. I will also introduce you what are the key example by taking different kinds of plants and their properties. So actually, what about the cross? Cross is the interaction between male and female in order individual interaction between male and female individual in order to give rise progeny in next generation. Progeny in next generation. That is probably having a variation because male comes having the different kinds of property and female are having the different kinds of property. So cross is important to know. What about the cross among the living organisms with respect of their genotype, with respect of their phenotypes. In biology, in case of genetics, the three basic kinds of cross exist. The three kinds of cross are most common. Point one, the back cross. Point two, the test cross. And point three, the reciprocal cross. Reciprocal cross. The back cross, test cross and reciprocal cross are the three different kinds of cross. Back cross, test cross and reciprocal cross are the three different kinds of cross for the genetics. So one by one I will describe about that. Now back to the back cross. Listen carefully. Back cross. Let I erase it and later I will describe the back cross. Listen carefully. Back cross. Actually, suppose that a plant is tall. A plant is pure tall. So phenotype of that plant will be. That will be the phenotype. Phenotype of that plant will be tall. Listen. And suppose that the plant is male plant. कोई ना कोई होगा ही, मेल होगा चाहे फीमेल होगा तो फीमेल प्लांट होगा, ठीक है. तो ये प्योर मेल प्लांट का मैंने फीचर्स ले लिया टाल, और उसका अगर जीनोटाइप बनाएंगे, ये जीनोटाइप और फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा. तो इसका अगर जीनोटाइप बनाएंगे, जीनोटाइप, तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी, बिकॉज इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने बताया था कि अगर जीन्स अपने आप में प्योर है तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. सो genotype are capital T and the phenotype are tall. Phenotypes are those characteristics which appears and which can be seen through the naked eye, which can be feel and which can be visible. So tall is the phenotypic properties and the T and T, capital T are the genotypic property. Keep in mind. And second one is the dwarf. Dwarf, for example, their genotype will be small t because both cannot express in next generation. Tall और dwarf का जो कंडीशन था, डोमिनेंट और रिसेसिव का जो कंडीशन था, वो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लियर कर दिया था. सो यहाँ पे यही जानना है कि दोनों के रिजल्ट क्या होंगे. If both perform the process of cross, then there will be hybrid. The
offspring that form in next generation will be hybrid. If this one is the male, then this will be the female. And next generation, suppose that this one is the parental generation. This is the parental generation, that is known as P1 generation. And from the parental generation, one parent was the tall and other parent was the dwarf. The tall parent I have selected may be the male or female, anyone. The result will be similar. अगर हम टाल को फीमेल ले लें और ड्वार्फ को मेल ले लें, तभी रिजल्ट वही रहेगा जो हमारा टाल को मेल और ड्वार्फ को मेल लेने पे, ड्वार्फ को फीमेल लेने पे हुआ था। तो नेक्स्ट जनरेशन में हमको जो जीनोटाइप मिलेगा उसका केयर ऑफ कर रहे हैं। जो जीनोटाइप नेक्स्ट जनरेशन में मिलने वाला है वो एक इसकी प्रॉपर्टी रहेगी कैपिटल टी की और एक इसकी प्रॉपर्टी रहेगी स्मॉल टी की। मैंने बताया था सिंगल जीन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट देयर इज अ सिंगल जीन्स दैट कैन इनफ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन नेक्स्ट जनरेशन। यानी किसी को टाल बनाना तो टाल का एक जीन ही काफी है, टाल का एक जीन ही काफी है। जीन हमेशा पेयर में होते हैं, एक टी है तो दूसरा भी टी ही होगा। ऐसा नहीं कि एक टी है तो दूसरा पी होगा, के होगा, कुछ और होगा ना। एक टी है तो दूसरा टी होगा। डिफरेंट क्या है, एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी होगा, या कैपिटल टी है तो वो भी कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी है तो वो भी स्मॉल टी होगा। मतलब एक टी है तो दूसरा टी होगा, क्योंकि टाल एक हाइट की प्रॉपर्टी है और हाइट हम बोल सकते हैं, लेकिन जीनोटाइप में या तो स्मॉल में या तो कैपिटल में ही दो ही चीज होता है, या तो स्मॉल या तो कैपिटल। तो डोमिनेंट अगर है यानी कि टाल है तो कैपिटल वर्ड होगा, अगर वो ड्वार्फ है तो स्मॉल होगा। तो यहाँ पे आप प्योर डोमिनेंट यानी इसके दोनों में से कोई भी एक टी उतारेंगे तो भी कैपिटल ही होगा, और उसके दोनों में से कोई भी एक टी लेंगे तो ये स्मॉल होगा। यानी कि ये कंप्लीट सेट हो गया इसका। अभी तो एक सेट की बात करेंगे, सिर्फ एक टी की बात करेंगे तो ये गैमीट है। दोनों सेट की बात कर देंगे तो यही क्या है, जाइगोट है, और यही एनिमल्स या प्लांट्स बनाता है। तो ये टाल ही होगा, लेकिन ये मिक्सचर होगा टाल का, जिसको कहेंगे हाइब्रिड टाल। सो दिस वन विल बी द हाइब्रिड टाल। So what is the difference between tall and hybrid tall? You cannot identify through your naked eye between the hybrid tall and pure tall. You cannot identify. आप पता ही नहीं कर पाएंगे कौन हाइब्रिड टाल है और प्योर टाल है। बस आपको ये दिखेगा कि दोनों 7 फीट, अगर 5 इंच का 7 फीट का अगर ये है कौन प्योर टाल है, तो इसकी हाइट 7 फीट से 1 इंच कम नहीं होगी। हाइब्रिड टाल और प्योर टाल मैंने बताया हो कि एक जीन ही का, ऐसा नहीं कि दोनों जीन मिलकर उसको 14 फीट का कर देंगे ना। अगर ये प्योर टाल 7 फीट का था तो हाइब्रिड टाल भी 7 फीट का ही होगा, इसमें आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। जीन्स के बेस पे वो हाइब्रिड और प्योर होते हैं। जीन्स इसका ब्लेंड है, मिक्सचर है, एक ड्वार्फ का भी है, तो ये जो है हाइब्रिड टाल होगा। इसकी हाइट सेम होगी बट ये हाइब्रिड टाल बोला जाएगा बाय मींस ऑफ द जीन्स। अब होता है कॉन्सेप्ट हमारा बैक क्रॉस का। अब हमको ये चेक करना है कि अगर इस टाइप का कोई टाल है, इस टाइप का कोई टाल है, माने जीन्स उसका पता नहीं है, पता ही नहीं जीनो टाइप क्या है, कैपिटल है कि स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी है कि स्मॉल टी। जैसे आपके सामने ये कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, बताओ ये टाल कौन सा, हाइब्रिड है कि ये प्योर है? तो देख के तो बता दो कि हाइब्रिड है कि प्योर है, लेकिन उसकी अपीयरेंस यानी कि किसी का फिनोटाइप अगर मालूम है, जैसे ये 7 फीट का अगर कोई प्लांट है तो ये बताओ ये कौन सा है, प्योर है कि हाइब्रिड? मैं कौन सा हूं, प्योर हूं कि हाइब्रिड हूं? तो इस हिसाब से आप उसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या करेंगे? सबसे बड़ी चीज है कि उसका 1 बाय 1 इससे या इससे, दोनों से बारी बारी से हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस का मतलब ये हुआ कि इस टाइप का कोई प्लांट इसी कैटेगरी का, या अगर ये एनिमल है तो इसी कैटेगरी का एनिमल 1 बाय 1 सेलेक्ट करते हैं, यानी इसका क्रॉस इससे करते हैं और इसका क्रॉस इससे करते हैं, ठीक है, दोनों से 1 बाय 1 क्रॉस करते हैं। तो जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस आप स्मॉल टी से करेंगे, तो अभी देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये क्या स्मॉल टी हो जाएगा, स्मॉल टी, फिर ये देखिए स्मॉल टी और ये स्मॉल टी हो गया। माने आप इसको ऐसे पार्टीशन कर लीजिए, पहले इसका मल्टीप्लाई दोनों में करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई दोनों में करिए। कैपिटल टी का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो एक बार कैपिटल टी इसमें आएगा, एक बार इसमें आएगा, फिर ये दोनों बारी बारी से स्मॉल टी का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो ये स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी। मतलब क्या है कि व्हेन यू मेक द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, ये जो हाइब्रिड आया है ये प्रोडक्ट F1 बोलेंगे,
और ये क्या था, पूरा P1 था, पेरेंटल था, ये P1 था, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, इसको बोलेंगे सेकंड फिलियल जनरेशन। नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। F मींस होता है फिलियल, मतलब क्या होता है, उसके जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन की मैं बात करता हूँ। तो जब क्रॉस जो है F1 हाइब्रिड का किसी पेरेंट से, ड्वार्फ से या रिसेसिव से, दोनों से करवाया जाता है आंख बंद करके, ये नहीं कि केवल ड्वार्फ से ही करवाया जाए, चाहे ड्वार्फ से करवाओ या फिर टाल से करवाओ, यानी डोमिनेंट से करवाओ या रिसेसिव से करवाओ, ठीक है। तो अगर आप डोमिनेंट से करवा रहे हैं तो भी और रिसेसिव से करवा रहे हैं तो भी, ये दोनों तरह का क्रॉस बैक क्रॉस है। ये दोनों तरह का क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस है, मतलब आंख बंद करके कराने वाला क्रॉस, ठीक है। रिजल्ट आपका, रिजल्ट पे भी फोकस नहीं करेंगे, अभी क्रॉस का फोकस करेंगे कि व्हेन यू मेक द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड टू द रिसेसिव पेरेंट्स और डोमिनेंट पेरेंट्स, मींस देयर इज नो गारंटी द पेरेंट्स इज डोमिनेंट और रिसेसिव। पेरेंट के केस में क्या होगा भाई, प्लांट्स में, किसी सीडेड प्लांट्स में अगर हम उसका पॉलन ग्रेन्स मिल जाएगा तो उसके पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग पे छिड़क सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ये F1 हाइब्रिड का क्रॉस किसी भी पेरेंट से अगर हो रहा है, देयर विल बी द बैक क्रॉस। सो बैक क्रॉस मींस द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड टू द एनी काइंड्स ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। अब आते हैं टेस्ट क्रॉस क्या है। अगर आप किसी सेलेक्टेड पेरेंट से इसका क्रॉस करा रहे हैं, और वो भी सेलेक्टेड पेरेंट्स कौन, सिर्फ रिसेसिव पेरेंट से, तो हो जाएगा आपका टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में यही थोड़ा सा सिमिलरिटी और डिफरेंस है। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड टू द रिसेसिव पेरेंट्स, यानी कि आप जा रहे हैं करने कौन सा क्रॉस, ये बता दे मुंह से कि मैं टेस्ट क्रॉस करने जा रहा हूं, मैं क्रॉस करने जा रहा हूं किससे, F1 हाइब्रिड से रिसेसिव पेरेंट्स का, तो वो सीधे बोला जाएगा टेस्ट क्रॉस। अगर आप ये नहीं बताएं किसी को मैं दोनों क्रॉस परफॉर्म करने जा रहा हूं, ऐसे बोल दो, तो आप बैक क्रॉस कराने जा रहे हैं। इट मींस टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ऑल टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस इज नॉट अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सभी जलेबियां मीठी होती है, लेकिन सभी मीठे जलेबी नहीं हो सकते, ठीक है। वही कंडीशन है कि टेस्ट क्रॉस सब के सब बैक क्रॉस ही होते हैं, लेकिन सभी तरह के बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। फॉर एग्जांपल द बैक क्रॉस इन विच द F1 हाइब्रिड इज टेकन आउट विद द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, विद द डोमिनेंट पेरेंट्स, देयर विल बी नो एनी काइंड्स ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कौन होगा, जब इधर से इधर मूव करेंगे, यानी कि F1 हाइब्रिड वर्सेस द रिसेसिव पेरेंट्स। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक दे दूं ताकि चीजें समझ में आ जाए। F1 हाइब्रिड वर्सेस रिसेसिव पेरेंट्स, यानी कि F1 मल्टीप्लाई RP, F1 मल्टीप्लाई RP-DP, F1 मल्टीप्लाई RP-DP। F1 दोनों के केस में F1 क्या है, हाइब्रिड ही है, ऐसा नहीं है हाइब्रिड की जगह पे प्योर आ जाए तो वहां से नहीं। F1 मल्टीप्लाई रिसेसिव पेरेंट इज इक्वल टू द TC एंड F1 मल्टीप्लाई RP-DP इज इक्वल टू द BC। ये आप ट्रिक कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिएगा, नोट हो जाएगा, तो आपको भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप उसको अपने लेवल पर रिजॉल्व कर देंगे। अब आते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस पे। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है उसको आप जान लीजिए। सबसे पहले रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब समझिए, लिसन केयरफुली। इन प्रीवियस टॉपिक, इसके पहले जो टेस्ट और बैक क्रॉस आपने पढ़ा था, उसमें आपने लिया था टाल प्लांट डोमिनेट और ड्वार्फ प्लांट रिसेसिव, ठीक है। तो फिर वहीं से शुरू करते हैं कहानी। P1 जनरेशन में जो टाल प्लांट था, लिसन अब ध्यान सुनेंगे, P1 में जो टाल प्लांट था वो क्या था, मेल था, और जो ड्वार्फ था वो कौन था, फीमेल था। जो टाल था वो क्या था, वो जो है मेल था, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर जो था, सीधे बोल सकते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर जो था वो मेल था, और रिसेसिव जो था, रिसेसिव वो फीमेल था। क्लियर है इतनी बातें। तो इसके रिजल्ट में हमको क्या मिला, F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड। बट क्या आपके दिमाग में ये नहीं आता है कि हम रिसेसिव को टॉल कर दें, यानी मेल फीमेल को अगर हम टॉल कर दें, रिसेसिव को नहीं, सॉरी, रिसेसिव यहाँ पे फीमेल की जगह मेल ले लें और डोमिनेंट मेल की जगह फीमेल कर दे, तो क्या रिजल्ट आएगा।
यानी कि ये कंडीशन हो जाए। P1 में कुछ इस तरह से माहौल बनाए कि टाल में यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर फीमेल ले ले, ठीक है। टाल में डोमिनेंट कैरेक्टर क्या ले ले, फीमेल, और ड्वार्फ में जो रिसेसिव कैरेक्टर है, ड्वार्फ को रिसेसिव बोलते हैं, बार बार हम रिसेसिव भी लिख रहे हैं और ड्वार्फ भी लिख रहे हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाओगे, या तो रिसेसिव लिखो या तो ड्वार्फ लिखो। हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं बार बार कि ड्वार्फ प्लांट में जो लेंथ होता है उसमें रिसेसिव हमेशा ड्वार्फ होता है, ठीक है। तो ड्वार्फ में हम यहाँ पे मेल ले लिए, क्लियर है ना, तो भी रिजल्ट हमको सेम मिलेगा, तो भी हमको क्या मिलेगा, F1 हाइब्रिड मिलेगा, F1 हाइब्रिड ही मिलेगा, ठीक है, F1 हाइब्रिड। अब कहानी आती है कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। अभी ये मैं किया नहीं, रिजल्ट नहीं आया, केवल दिमाग में लगाया कि टाल को यानी डोमिनेंट कैरेक्टर मैंने मेल ले लिया और रिसेसिव कैरेक्टर फीमेल ले लिया, तो रिजल्ट क्या होगा अगर हम दोनों का जेंडर चेंज कर दें। तो जेंडर चेंज करने के बाद जो क्रॉस करते हैं उसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। सो व्हाट इज एक्चुअली रेसिप्रोकल क्रॉस? Reciprocal cross are those type of cross in which we perform the cross between two individual by taking two different kinds of cross, in order to change their gender. In one example, for example, in first cross, if the male is dominant, then in second cross, male will be recessive. एक का एग्जाम्पल ले लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप तीनों क्रॉस आपको क्लियर हो गए होंगे, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में अगर आपको डाउट है तो एक बार मैं फिर बता रहा हूं, द टू क्रॉस रिक्वायर्ड इन विच द जेंडर इज अल्टर्ड। इफ फर्स्ट क्रॉस हैज अ मेल डोमिनेंट, then in second cross male will be recessive, there will be the alternation of gender. Thank you.